بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لنتا کی کہانیاں لنتا وائس چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ لنتا وائس چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجیے۔ آپ سب کے لیے ایک شارٹ سٹوری لائی ہوں، امید کرتی ہوں اسے مکمل اینڈ تک سنیں۔ اختلافات، ایک ایسے گھرانے کی لڑکی کی کہانی، مینال اور زروان، جو ایک ہی یونیورسٹی میں ساتھ پڑھتے تھے، تعلیم حاصل کی اور پھر ان کا رشتہ ہوا اور ان کی شادی کو صرف 1.5 ماہ ہوا تھا۔ یہ اپنی زندگی میں بہت خوش تھے۔ کہانی کس موڑ پر آئے گی، کہانی میں کتنے رنگ، کہانی بہت خوبصورت انداز میں، اور زائشہ جو زروان کو بے پناہ لائک کرتی تھی، زائشہ جو زروان کو حاصل کرنا چاہتی تھی، زروان کی بھابھی کی بہن۔ کہانی بہت ہی خوبصورت انداز میں۔ اختلافات، کہانی کس موڑ پہ جاتی ہے، آئیے کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ میرا نام مینال ہے۔ آج سے چند سال پہلے کی بات ہے اور زندگی اب بس گزر رہی ہے، اور میرے گھر میں میرے ممی اور میرے پاپا اور میں ان کی اکلوتی بیٹی، ہم لوگ رہتے، اور پھر شادی ہو گئی۔ شادی کو صرف 1.5 ماہ گزرا تھا، اور میری سب سے پیاری بیسٹ فرینڈ، جو میری سب سے اچھی دوست، ایک ساتھ یونیورسٹی میں پڑھے، اس کی بھی شادی ہو گئی تھی۔ 5 ماہ گزرے، ایک دوسرے کو بہت یاد کرتے، اور وہ مجھ سے بہت محبت کرتی، بالکل بہنوں کی طرح۔ اس کا نام مرینا، اور وہ اپنے گھر میں بہت خوش تھی، میں بھی اپنے گھر میں بہت خوش۔ اور میری پیاری سی خالہ جو UK میں تھی، وہ مجھے بہت چاہتی، ہمیشہ ان کا فون آتا، خیال رکھتی، بہت چاہتی تھی۔ دراصل انہوں نے میرا رشتہ مانگا تھا، مگر رشتے آسمانوں پر بنتے ہیں، اور زروان سے شادی ہو گئی، کیونکہ زروان بہت لائک کرتے تھے، ایک ہی یونیورسٹی میں ساتھ پڑھتے تھے، اور انہوں نے لائک کیا، پرپوز کیا، اور پھر اس طرح رشتہ ہو گیا۔ 1.5 ماہ شادی کو ہوا تھا، اور ہم اپنی زندگی میں بہت خوش تھے۔ بس زائشہ جو مجھے بالکل سمجھ ہی نہ آئی تھی، زائشہ جو زروان کو بہت لائک کرتی تھی، یعنی زروان کی بھابھی کی بہن، اور مجھے زروان بتا چکے تھے، اس بات کو شیئر کر چکے تھے کہ زائشہ انہیں لائک کرتی تھی، اور زروان کے گھر میں بہت اچھا لگتا، بڑے بھائی بھابھی ان کی ممی رہتی، اور جب بھی پکچرز دیکھتے زروان یہی کہتے، دیکھو کتنا اچھا لگ رہا ہے تمہارا پنک ڈریس، اور میں ان سے یہی کہتی تھینک یو، کس طرح ہم دونوں ایک ساتھ کھڑے دعا مانگ رہے ہیں، اور انہیں وہ پکچرز بہت اچھی لگتی تھی۔ وہ یہی کہتے کہ میں نے دعاؤں سے تمہیں حاصل کیا، اللہ تعالیٰ نے میری مراد پوری کی، مینال تم مجھے بہت اچھی لگتی تھی، اور دیکھو آج ہم دونوں ساتھ ہیں، اور زندگی بہت خوش ہے، اور میں بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی۔ اور وہ مجھے بتا چکے تھے کہ زائشہ بھابھی کی بہن جو مجھے بہت لائک کرتی ہے اور حاصل کرنا چاہتی تھی، ہاں مجھے پتہ ہے، آپ مجھے بتا چکے ہیں، زروان زائشہ بہت زیادہ چاہتی تھی، اور وہ اس رشتے کو کرنا چاہتی تھی، مگر وہ سمجھ چکی تھی کہ میں مینال میں انٹرسٹڈ ہوں، اور وہ مجھے اس طرح دیکھتی، مجھے عجیب سا فیل ہوتا جب بھی آتی۔ دراصل بھابھی کے بچے نہیں ہیں، اس لیے بھابھی زائشہ کو بہت چاہتی ہیں، زائشہ کا اکثر آنا جانا ہوتا، وہ رہتی یہیں پر ہے، تم اس چیز کو فیل نہ کرنا، بس ممی کا خیال رکھو، ممی چل نہیں سکتی، ہاں مجھے پتہ ہے آنٹی کا مسئلہ، ممی بالکل نہیں چل سکتی، ان کے پیروں کا ہم نے کہاں کہاں علاج نہیں کرایا، اور دعا کرتے ہیں کہ وہ چل سکیں۔ میں بہت دعا کروں گی۔ آنٹی بولتی بھی نہیں تھی، اشاروں میں بات کرتی تھی، دراصل ان کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا جب ان کی یہ حالت ہو گئی، اور زروان کے ڈیڈ وہ تو دنیا میں نہیں تھے، بڑے بھائی بہت پیار کرتے، اور اس طرح ہم لوگ بہت ہنسی خوشی زندگی کو گزارنے لگے، پھر بہت اچھا لگتا، زندگی بہت اچھے سے گزرنے لگی تھی، مجھے بہت اچھا لگتا، ممی کی خدمت کرتی، خیال کرتی، اور پھر ایک دن میں لان میں آ رہی تھی، جب میں نے دیکھا قدم پیچھے کر لیے، زروان اسے سمجھا رہے تھے، اور زائشہ مستقل کہہ رہی تھی، زروان میں تمہیں ابھی بھی بہت لائک کرتی ہوں، تمہیں پتہ ہے نا، جب میری آپ ہی کا رشتہ ہوا تھا 2 سال وہ رشتہ رہا، اس کے بعد 5 سال کا عرصہ بیت گیا ان کی شادی کو، اتنے سال ہو گئے، میں کسی سے شادی نہیں کروں گی، میں تم سے ہی شادی کروں گی۔ کیا یار، تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، میری شادی ہو چکی ہے، مینال میری لائف پارٹنر ہے جسے میں چاہتا تھا، اور آج وہ میری زندگی میں، ہم دونوں بہت خوش ہیں، سوچنا بھی نہیں کبھی۔ اور یہ سن کر میں پیچھے ہٹ گئی، زروان واقعی اپنی جگہ رائٹ تھے، اور وہ اسے ڈانٹا کرتے تھے، لیکن میں تمہیں ضرور حاصل کروں گی، آپ ہی کو میں سب بتا چکی ہوں، میں تم سے شادی کروں گی،
ऐसा कभी नहीं होगा। तुम मुझे भूल जाओ, बहुत अच्छे लाइफ पार्टनर तुम्हें मिलेंगे, इंशाल्लाह तुम्हारी शादी हो जाएगी। और मैं ये सुन के पीछे हट गई। उसके बाद फिर मैंने सरवान को कहा कि मेरी दोस्त मरीना आएगी, उसकी बर्थडे है, उसके लिए मैंने कुछ गिफ्ट्स लिए हैं। हाँ हाँ, मोस्ट वेलकम, उसे बुला लो। मम्मी क्या तो मुलाकात हो जाती है, मगर वो कह रही थी तुम्हारे ससुराल आना चाहती हूँ, और वो खुश हुए। और फिर 2 दिन के बाद जब मरीना मेरी दोस्त आई, कैसी हो मिनाल, क्या हाल है यार, बहुत मिस करती हूँ, मैं भी तुम्हें बहुत मिस करती हूँ। अब क्या करें, अब आना जाना ही नहीं होता। हाँ क्या करूँ, तुम तो प्रॉब्लम बता चुकी हो ना, तुम्हारी भाभी बहुत सख्ती करती हैं। हाँ, क्योंकि वो मम्मी तो अब बिस्तर पर हैं, वो तो बोल भी नहीं सकती, तो भाभी सब घर को संभालती हैं और भाभी ही कहती हैं ठीक है, लेकिन कभी तो आओ मेरे घर। आऊँगी कभी, सरवान से कहूँगी। और फिर उसके लिए मैंने जो एहतमाम किया था वो बहुत खुश हो रही थी। और जब हमने खा पी लिया तो उसके बाद जब हम लॉन में जाकर बैठे, वहाँ पर जायशा आ गई। कुछ देर बातें करते रही, फिर चली गई। जब वो उठ के गई, यार मिनाल मुझे ये लड़की बिल्कुल ठीक नहीं लग रही, तुम समझो मेरी बात को, ये तुम्हारी लाइफ डिस्टर्ब कर सकती। वाकई ये सरवान को बहुत लाइक करती थी, ये तो मुझे भी पता था, यूनिवर्सिटी में हम साथ पढ़ते थे। जब भी कोई बात होती सरवान हमेशा इसका जिक्र करता था, ऐसा कुछ नहीं है, इसकी शादी हो जाएगी, ठीक हो जाएगी, लेकिन मेरी बात को मानो, समझो और गौर करो, ये सरवान को बहुत लाइक करती है, मैं बता रही हूँ। चलो मम्मी के आएंगे तो फिर ढेरों बातें होंगी। तुम्हें खाना पसंद आया, मुझे सब कुछ पसंद आया कि अचानक भाभी आई और कहने लगी काफ़ी घंटे हो गए, मेरे ख्याल से मरीना अब आपको घर जाना चाहिए। जी जी भाभी, जी जी बस मैं जा ही रही हूँ, ड्राइवर आने वाला है मेरा। और ये कह के भाभी चली गई। मुझे इतना गुस्सा आया, उस वक्त मैं बर्दाश्त कर गई। सॉरी सॉरी मरीना, आई एम वेरी सॉरी। यार भाभी ज़रा गर्म मिजाज की, इट्स ओके यार, लेकिन बस क्या कह सकते हैं, ख्याल रखो तुम अपना, तुम्हारी अपनी ज़िंदगी है, तुम्हारी भाभी को ज़्यादा इंटरफेयर करती हैं और उससे ज़्यादा उनकी बहन। सॉरी बोल तो रही हूँ ना, आऊँगी ज़रवान के साथ। और इस तरह वो घर चली गई। मेरा मूड काफ़ी ख़राब था। जब ज़रवान आए, उन्होंने देखा आज आपका मूड बहुत ख़राब है, क्या बात है। तो जब मैंने उन्हें सारी बात बताई, वो भी अफसोस करने लगे। उन्होंने भाभी से जाके कहा भाभी आपको इस तरह नहीं करना था, वो उसकी बेस्ट फ्रेंड है मरीना, अक्सर आती थी, उसका भाई उसे लेके आता था, बहुत अच्छी लड़की, अब तुम मुझे समझाओगे इस घर में क्या सही है क्या गलत। भाभी जब इस तरह बोल रही थी, जरवान अंदर आके कमरे में बैठ गए और कहने लगे मैं समझता हूँ भाभी के मिजाज को, किस तरह कह रही हैं कि अब तुम मुझे समझाओगे। छोड़ें आप, जाने दें इनको, अब आप भी तो इनका मिजाज जानते हैं ना। और इस तरह उन्होंने भी इस बात को दरगुजर किया। और फिर 2-4 दिन के बाद जब मम्मी आई, इतना खुश हुई, सलाम दुआई, उन्हें बिठाया और फिर उन्हें मम्मी के कमरे में ले गई। भाभी ने भी मुलाकात की मम्मी के लिए। मैंने जल्दी जल्दी खाना तैयार किया। डैड आ जाते, डैड तुम्हारे बिज़ी थे बेटा, मैं आई हूँ, मैं शाम तक के लिए, और तुम भी ज़रूर आना। मैं ज़रूर आऊँगी, बस मम्मी की वजह से नहीं निकल पाती, उनका भी बहुत ख्याल रखना पड़ता है, उन्हें यखनी वगैरह दिया करो, वक्त पर उनको खाना खिलाया करो। और उन्हें बहुत दुआएं दे रही थी मम्मी कि आप अपने पैरों पर इंशाल्लाह एक दिन चलने लगेंगी। और वो भी इशारों में दुआ कबूल करके यही कह रही थी। और इस तरह फिर मैं जल्दी जल्दी यखनी निकालने लगी जब, तो वहाँ पर जायशा आ गई और उसने कहा अरे इतनी मेहनत क्यों करती हो, मैं बना लिया करूँगी आंटी के लिए हर चीज़, उन्हें क्या पसंद है क्या नहीं मैं जानती हूँ। अरे नहीं, ये मेरा फ़र्ज़ है आंटी की खिदमत करना, तो मेरा भी तो ये घर है, इससे बल्कि मैं अपना घर ही तो समझती हूँ। इस तरह वो कह के मुस्कुरा के जब चल दी, इस बात को मैंने निगलेक्ट किया और ट्रे लेकर आई, आंटी को सूप वगैरह पिलाया, फिर मम्मी को खाना वगैरह सब खिला के जब फ़ारिग हुए तो अचानक से भाभी के दिमाग में क्या चल रहा था, इतनी बुराइयां करने लगी वो मम्मी से कि मम्मी को बहुत अफसोस हो रहा था। उन्होंने कोई आंसर ना दिया। आपकी बेटी देर से सो के उठती है, काम भी वक्त पर सही नहीं कर पाती है, लगता है आपने अच्छी तरबियत नहीं की। जी मैंने इसकी बहुत अच्छी तरबियत की है और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, हर चीज़ सिखाई है अपनी मैंने मीनाल को, वो तो नज़र आ रहा है। और मैं मम्मी को इशारा कर रही थी कि मम्मी ना बोलें। बाद में जब मम्मी चली गई तो उन्हें मैंने बताया कि सरवान इनके बारे में सब कुछ बता चुके हैं और अब मैं समझने लगी हूँ भाभी का मिजाज। मम्मी भी बहुत अफसोस करती हुई चली गई। और जब सरवान आए, क्या बात है आज आप रो रही हैं, आपका मूड बहुत ख़राब है, तो मैंने उन्हें A to Z बताया। बहुत अफसोस किया उन्होंने और कहा तुम परेशान नहीं हो, अपना मूड ठीक करो, कल हम आपको घुमाने लेके जाएंगे, आपको हम इतना सारा घुमाएंगे कि आपका दिल खुश हो जाएगा। और उन्होंने जाके भाभी से कहा, तो भाभी ने कहा अब तुम मुझे समझाओगे इन बातों को।
अब आप अपना मूड ठीक करें, कल हम आपको आउटिंग पर लेकर जाएंगे, दो दरिया चलेंगे, आप वहाँ बहुत खुश होंगी। हाँ मुझे भी बहुत पसंद है। और फिर इस तरह मैंने अपना मूड ठीक किया। भाभी की बातों को अब मैं समझने लगा हूँ। वो बोलती हैं, उनकी आदत है, भैया भी कहते हैं। और इस तरह फिर हमने तैयारी की कि हमें वहाँ पर जाना है घूमने के लिए आउटिंग पर। और जब वो सुबह जल्दी जल्दी कुछ सामान लेने के लिए निकले, उन्हें घर का कुछ सामान लाना था कि मैंने विंडो से देखा लॉन में, जब जायशा ने एक पिंक कलर का रोज़ लिया और कहा, सरवान ये मैंने तुम्हारे लिए तोड़ा है, देखो तो कितना खूबसूरत है। थैंक यू, बहुत अच्छा लग रहा है। अब तुम इसे मेरी तरफ से मेरी प्यारी सी भाभी को दो, वो मेरी आप ही की तरह भी हैं, मगर ये फ्लावर मैंने आपके लिए लिया। और वो ज़बरदस्ती करने लगी तो उन्होंने कहा, अच्छा अभी मैं जल्दी में हूँ, तुम जाकर इस रोज़ को मीनाल को दे देना, वो मुझे दे देगी। और फिर इस तरह सायशा का मूड ख़राब होने लगा। और हम आज आउटिंग पे जाएंगे, ज़रा मैं जल्दी में हूँ, मैं भी चलूँगी, फिर कभी जब भाभी भैया के साथ चलेंगे तो हम आपको भी ले जाएंगे, तो अभी मैं जल्दी में हूँ। और फिर इतना ज़्यादा उसका मूड ख़राब लग रहा था सायशा का। और फिर भाभी से इजाज़त ली, उन्होंने कहा जल्दी आ जाना। जब हम वहाँ गए, हमें बहुत अच्छा लग रहा था और मेरा मूड बहुत काफ़ी हद तक ठीक हो चुका था, बहुत अच्छा लग रहा था। कैसा लग रहा है अब बताओ, तुम्हें यहाँ कितना एंजॉय कर रही हो ना? हाँ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और जब हम लोग समंदर के पास खड़े थे, देखो तो सरवान कितना अच्छा लग रहा है, पूरा येलो समंदर हो गया, बहुत अच्छा लग रहा है। ख़ास देखें ना, ख़ास तौर पर जब ये डूबता है तो पूरा समंदर येलो हो जाता है। फिर पिक्चर्स बनवाई, देखो कितनी प्यारी प्यारी पिक्चर्स आई हैं। और इस तरह फिर हम समंदर को देखते रहे, काफ़ी इन्जॉय किया। उन्होंने कहा अपना हाथ उठा, क्यों, उठाओ तो सही। उन्होंने अपना हाथ उठाया और जब सेल्फी ली, और उन्होंने कहा कि इस हाथ को हमेशा संभाल के रखना। उन्होंने दोनों हाथों से एक एक हाथ, मेरा हाथ, और यानी उन्होंने अपना हाथ उठाया और कहा, देखो तो मीनाल और सरवान का हाथ कितना अच्छा लग रहा है, इस हाथ को हमेशा संभाल के रखना, कभी टूटने ना देना। और जब मैं हाथ नीचे करूँगी तो ये टूट जाएगा, लेकिन सरवान के दिल से कभी नहीं टूटेगा, दिल में है जगह, मीनाल हमेशा वहाँ रहती है। थैंक यू, इतने रिस्पेक्ट के लिए, बहुत ज़्यादा ख्याल करते हैं आप, मोहब्बत करते हैं। बहुत इन्जॉय किया। और जब हम वहाँ घूमते रहे और बिल्कुल जब ढलने लगा समंदर और अपना कलर, उसका कलर चेंज होता जा रहा था, देखें तो जब उस वक्त शाम में सूरज कितना येलो कलर में था और अब कितने कलर बदल रहा है, देखें बिल्कुल चांद की तरह लगता है, डूबने पे आ रहा है। हाँ, ख़ास तौर पे जरवान जो मैडम ने सॉन्ग गाया था, वाकई वो सॉन्ग बहुत अच्छा लगता है। जब समंदर को देखो, मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना, तू समंदर है मैं साहिलों की हवा, तू मेरा हाथ हाथों में लेकर चले, मेहरबानी तेरी, तेरी आहट से दिल का दरीचा खुले, मैं दीवानी तेरी। ये तो बहुत प्यारा गाया मैडम ने। और वाकई जब भी समंदर को देखो सबको ये सॉन्ग याद आता है। और इस तरह हमने खूब इन्जॉय किया, बहुत अच्छा। आपने हमें समंदर के पास जो इतना प्यारा सा सॉन्ग बताया, हमें भी ये सॉन्ग बहुत अच्छा लगता है। आप इसी तरह हंसी रहा करें मीनाल, खुश होके आप मुस्कुराती हुई हमें बहुत अच्छी लगती हैं। थैंक यू। फिर हमने वहाँ खाना खाया, खूब इन्जॉय किया, पिक्चर्स बनाई। और फिर शाम हो गई, मैं वहाँ के तारे गिन रही थी। अब तारे गिनना बंद करो, अब चलो, देर हो रही, भाभी बहुत डांटेंगे। और इस तरह फिर हम घर पहुँचे। भाभी भाभी ने पूरी डिटेल ली, उन्हें सब बताया कैसा लगा वहाँ तुम लोगों को। और फिर हमें भाभी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जिस तरह इशाल देख रही थी कुछ अजीब सा फील हो रहा। और फिर घर आकर भाभी को सारी खैरियत बताई। ठीक है, अब ज़रा घर पे तवज्जो दो, घर को संभालो। भाभी मैं घर को संभालती हूँ, मम्मी का भी ख्याल रखती हूँ। अच्छा अब तुम लोग जाओ रेस्ट करो। और फिर इस तरह फिर हम लोग भी बहुत थक गए थे। उसके बाद फिर जब रेस्ट किया, अगले दिन जब उन्हें वहाँ पर जाना था हॉस्पिटल, उनकी फ्रेंड हॉस्पिटल में एडमिट थी, मैं भी सुन रही थी। जब उन्होंने कहा भाई से, आप एक काम करें, हॉस्पिटल जाना है मुझे और जायशा को भी छोड़ना है, मम्मी अब उसे याद कर रही हैं, कब से तो रह रही थी, मिल के आ जाती है, अब घर जाना है इसको। हाँ ठीक है, मैं छोड़ दूँगा, ठीक है, बस मैं अभी आई, ऊपर जा रही हूँ, मैं ज़रा फ्रेश होके आती हूँ और मैं ज़रा अपने शूज़ पहन लूँ। ठीक है, आप आ जाए वहाँ से तैयार होके, तो फिर मैं आपको लेके चलता हूँ। और इस तरह भाभी ऊपर चलेंगी।
कुछ देर के बाद ज़ोर से भाभी के गिरने की आवाज़ आई। उनका पाँव फिसला और वो गिर गईं और वो इतना रो रही थीं। सब लोग घबरा गए, अरे क्या हो गया? और इस तरह फिर उन्हें हॉस्पिटल लेकर गए। जब हॉस्पिटल लेके गए तो पता चला उन्हें फ्रैक्चर हो गया है, प्लास्टर बन गया। और अब तो जायशा और ज़्यादा परेशान सी लग रही थी। हम लोग भी बहुत परेशान थे। मम्मी वो भी देखने आई और फिर वो इस तरह 2-4 दिन इसी तरह तकलीफ़ में रही, प्लास्टर की तकलीफ़ को फ़ील करती थी, एडमिट हुई और उसके बाद घर आ गई। और फिर मैंने खुद सुना जब भाई ने कहा, जायशा अब तुम यहीं रहो, आप ही का ख्याल रखोगी, मैं भी ऑफिस में होता हूँ, कितना करेगी मिनाल, मैं कर लूँगी भाभी का ख्याल। नहीं नहीं जायशा, आप ही हैं आपकी। और इस तरह जायशा अपना सामान लेकर आ गई। उनकी मम्मी भाभियाँ सब देख के गई और इस तरह बेड पर वो भी आ गई। अब मम्मी को भी देखना पड़ता था, भाभी को भी। और इस तरह जायशा सामान लेकर आ गई और वो यहाँ पर रहने लगी। और फिर सरवान मुझे समझाते, मिनाल बहुत ख्याल रखना भाभी का, देखो कितनी तकलीफ़ है, गिर गई हैं वो और पता ही नहीं चला किस तरह किस एंगल से उस दिन सीढ़ियों से गिरी। हाँ मैं बहुत ख्याल रखूँगी, आप ऑफिस जाए परेशान ना हो, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो बता दिया करो। और फिर अक्सर मैं देखती जब भी वो ऑफिस जाने के लिए जाते तो जायशा लॉन में पहले ही खड़ी हुई होती और उनको कहती खैरियत से जाएं, बाय बाय करती। इन चीज़ों को अब मैं देख के अजीब फील करती थी, लेकिन फिर सरवान जब मुझे यकीन दिलाते तो फिर मैं समझ जाती कि जब भाभी ठीक हो जाएंगी तो जायशा यहाँ से चली जाएगी। और फिर उस दिन भाई भी ऑफिस में थे और जब सरवान ऑफिस में थे कि जायशा ने मुझसे कहा तुमने नाश्ता सारा तैयार कर लिया, काम करवाती, इस तरह हुक्म चलाती जैसे वो उसका घर हो। लेकिन मैं इन बातों को फिर भी निगलेक्ट करके रह रही थी। मुझे पता था ये घर मेरा ही है, जायशा चली जाएगी। मैंने सारा नाश्ता तैयार कर लिया, एक काम करो अभी मुझे यखनी सामान और खाना तैयार करना है। मैं भाई से बोलना भूल गई और जरवान से भी, और ये लोग ऑफिस में हैं, सामने करीबी मार्केट है, ऑटो लो और चले जाओ। मैं इस तरह यार मैं कभी नहीं गई हूँ, मैं इस तरह कैसे चले जाऊँ? मैं अभी जरवान को कॉल करती हूँ, वो मुझे सारा सामान ला देंगे। यार इतनी सी चीज़ के लिए जरवान को डिस्टर्ब करोगी? तुम जाओ, ये सारी लिस्ट है, मैं तुम्हें बता रही हूँ और किसी को पता नहीं चलेगा। और अगर तुमने जरवान से कुछ कहा तो मैं कह दूँगी कि मुझे जायशा ने सामान लाने को कहा था, मैं कभी इस तरह नहीं गई हूँ। तुम चली जाओ, मुझे खाना बनाना है, आप ही को भी मुझे चीज़ें बना के देनी है जो डॉक्टर ने कही है, आंटी को देखना है इस वक्त। ठीक है मैं चली जाती हूँ, सामान की लिस्ट लो और तुम जाओ। और इस तरह मैं जब वहाँ पर गई पहुँची तो वहाँ पर मुझे मेरी दोस्त नज़र आई। मैं वहाँ सामान ले रही थी कि मुझे अचानक मरीना नज़र आई और मरीना मेरे करीब आई। हाउ आर यू मिनाल? आई एम फाइन। तुम यहाँ कैसे? बस मैं कुछ सामान लेने आई थी, लिस्ट है और इस तरह मुझे ये सामान लेना था। तुम्हें नहीं आना था, जायशा ने तुम्हें भेजा है ना, तुम कब समझोगी यार, वो तुम्हें यूज़ कर रही है। ऐसी कोई बात नहीं है, घर में सामान ख़त्म हो गया था और फिर उसने मुझे मना भी कर दिया था, तुम्हें उसी वक्त जरवान को इन्फॉर्म करना था। अच्छा मैं अभी कॉल करती हूँ, अब कॉल करोगी तो वो गलत समझेगा। अब ऐसा करो तुम जल्दी से सामान समेटो, वो तुम्हें डांटेगा, तुम्हें उस वक्त मुझे इन्फॉर्म करना था। हाँ यार मुझसे गलती हो गई, तुम बहुत मासूम हो। अब तुम जल्दी से सामान समेटो, भैया तुम्हें छोड़ देंगे, तुम चलो ना, तुम मुझे बस गेट के बाहर ही छोड़ देना। यार मेरी मदर इन लॉ आ रही है, ड्राइवर साथ में, मुझे ज्वेलर्स के पास जाना है, आज मुझे एक तकरीब में जाना है। मैं तो मम्मी के घर का कुछ सामान भैया को दिला के भेज रही हूँ, मैं ज़रा समझदारी से ले लेती हूँ। अब तुम जल्दी से जाओ, ठीक है? ओके मैं चलती हूँ। और इस तरह मैंने जल्दी जल्दी सामान समेटा और मैंने कहा आप भैया मुझे बस बाहर से ही छोड़ दीजिए। अरे मैं आपके भाई की तरह हूँ, हमेशा तो आपके घर आता था, मैं जानती हूँ, मगर आपको पता है मेरे ससुराल का मामला। जब मैं वहाँ पहुँची तो वहाँ मंजर देख के मैं हैरान थी। जरवान वहाँ खड़े हुए थे और जायशा, और जब जरवान ने बहुत ज़ोर से डांटा, कहाँ से आ रही हो? अरे ये मेरे भाई हैं, आपको पता तो, मरीना के भाई। वो तो मैं भी देख रहा हूँ। अरे मैं यही तो जरवान आपसे कह रही हूँ कि ये गाड़ी में आए थे, इसे लेके गए। ये क्या बोल रही हैं आप? आपको शर्म नहीं आती? आप इस तरह का इल्ज़ाम लगा रही हैं। मैं इन्हें छोड़ने आया मार्केट में, वहाँ पर मरीना साथ में थी, उसने कहा कि ये ऑटो में आई थी कि छोड़ कर आ जाओ। ये कहानी आप कहीं और किसी को सुनाइएगा। जायशा तुमने ही तो कहा था घर का सामान ख़त्म हो गया, जरवान को मत बताना खाना बनाना। मैंने कब कहा? इससे पहले भी ये इनके साथ जा चुकी है। उसने इतने इल्ज़ाम लगाए कि मैं रोती रह गई और उन्होंने मरीना के भाई को इतनी इंसल्ट की और उन्हें कहा आप इसी वक्त चले जाएं, ये हमारे घर का मामला है। उन्होंने बहुत समझाने की कोशिश की मगर सरवान उसकी बातों में आ चुके थे। उसने इतने अख्तिलाफ़ात हमारी लाइफ में फैला दिए थे, ज़िंदगी को बर्बाद करना चाह रही थी। मैं सच कह रही हूँ, मैं
ज़ायशा के कहने पे गई थी। तुम मुझसे कहती, मुझे इन्फॉर्म करती, बच्ची तो नहीं हो जो उसकी बातों में आ गई। मैं सच कह रही हूँ। मैं और उन्होंने इतना झगड़ा किया और मैं गुस्से में कमरे में चली गई और फिर उसके बाद 2 दिन तक झगड़ा होता रहा। भाभी भी बिस्तर पे थी, वो भी समझाती रही, मगर ज़रवान को ना जाने क्या हो गया था, क्या खन्नास उनके दिमाग में आया कि उन्होंने मेरी एक ना सुनी। और ज़ायशा हल्के हल्के मुस्कुरा रही थी। मैं तुम्हें ज़ायशा कभी माफ़ नहीं करूँगी, ज़िंदगी में आखिरी दम तक। तुमने मेरा घर बर्बाद कर दिया, यही तो मैं चाहती थी। तो मेरी बातों में आ गई और उसने इस तरह जाल बिछाया, इतने इख्तिलाफ़ात फैलाए कि कुछ समझ ना आया। मम्मी को पता चल गया, मम्मी को मैंने बताया, उन्होंने कहा मैं आती हूँ, मैं बात करती हूँ। और इस तरह इतने इख्तिलाफ़ात और मैं मुस्तकिल समझा रही थी, लेकिन सरवान को कुछ समझ ना आया। वो यही कह रहे थे, मैंने जो आंखों से देखा है वो देखा है, वो लड़का तुम्हारे साथ था। मैं मानता हूँ तुम कह रही हो मरीना का भाई था, वो यहाँ क्या कर रहा था? तो मुझे इन्फॉर्म करती, मैं तुम्हें सामान ला के देता। ये ज़ायशा ने मुझे कहा था, मैं सच कह रही हूँ। अरे मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही है ज़रवान, मैं सच कह रही हूँ। 2 दफ़ा मैंने इसे देखा था, 2 दफ़ा। और मैंने आप ही तक से ज़िक्र नहीं किया क्योंकि आप ही का मिज़ाज आप अच्छी तरह जानते हैं। ये लड़का आता था, ये गई, लेकिन मैंने इसे बहुत समझाया। तुम मुसलसल झूठ बोल रही हो, तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। मेरी ज़िंदगी में जो इख्तिलाफ़ात तुम लाई हो, तुम कभी खुश नहीं रहोगी। इनफ मिनाल, अपने जो ऐब है वो दूसरों पे ना डालो। और जो तुमने मेरा दिल तोड़ा है, तुमने जो कुछ किया मैंने आंखों से देखा है। मेरी ज़िंदगी में तुम्हारे लिए अब कोई जगह नहीं। और फिर मम्मी भी आ गई, उन्होंने भी बहुत सुनाया ज़रवान को, सबको। मेरी बच्ची के साथ जो तुम लोगों ने किया कभी माफ़ नहीं करूँगी। और ज़ायशा, मैं रोती हुई जब वहाँ गई तो ज़ायशा वहाँ खड़ी थी, फ़ौरन आई, वहाँ पर खड़ी हो गई और मुझे देख के मुस्कुराने लगी। जब मम्मी ज़रवान को डांट रही थी, कहने लगी, देखो ना जो जाल बिछाया मैंने, कितना कामयाब गया और तुम बर्बाद हो गई। जो इख्तिलाफ़ात मैंने तुम्हारी ज़िंदगी में और ज़रवान की डाले, आज क्या मिला तुम्हें? तुम कभी खुश नहीं रहोगी। अल्लाह ताला से मैंने इंसाफ मांगा है और इंसाफ होगा। तुम कभी खुश नहीं रहोगी ज़ायशा। और मैं देखना एक दिन ज़रवान को हासिल करूँगी। तुम उसे हासिल करो या कुछ भी करो, मगर तुम खुश नहीं रहोगी। और मैं रो रही थी, मम्मी इतना समझाते रही। उसके बाद ज़रवान ने कहा, इसे आप ले जाएं, मैं पेपर भेज दूँगा, मैं इसे नहीं रखूँगा। और उस दिल का क्या? उस दिल को कहा था तुमने संभाल के रखना, कहाँ गए वो तुम्हारे वादे? उस दिल के टुकड़े कर दिए। भरोसा भरोसा करना था तुम्हें। ज़िंदगी भरोसे का नाम है। तुमने मेरा दिल तोड़ा है, बहुत दुख पहुंचाया है। नाल बहुत रोती रही और उसने अपनी बेगुनाही बहुत ज़्यादा साबित करने की कोशिश की, लेकिन ना जाने क्योंकि मैं उसे बहुत लाइक करता था और उसने मेरे भरोसे को तोड़ा था। मुझे क्यों नहीं बताया वो कैसे चली गई, और जो कुछ ज़ायशा कह रही थी मैंने यकीन किया। और फिर इस बात को 6 माह गुजर गए। बहुत ज़्यादा कॉल आती थी मरीना की, वो कहती मेरी बात सुनो, मुझसे मिलो, मेरे मैसेजेस को रिसीव करो, मगर मैं नहीं करता ना कॉल। वो ना जाने क्या कहना चाहती थी, मैंने नहीं यकीन किया और ज़ायशा की बात पर। और इस तरह मैं यकीन करता चला गया क्योंकि बहुत ज़्यादा लाइक करता था। मेरा दिल टूट चुका था मीनाल को, वो मेरी ज़िंदगी में अब नहीं थी। और फिर माँ भी ठीक हो गई, घर वालों ने सब ने समझाया, इतना प्रेशर डाला कि ज़ायशा से शादी कर लो, तुम्हें बहुत लाइक करती है, उसकी ज़िंदगी को उसे शामिल कर लो, उसे अपनी ज़िंदगी में बसा लो। ना जाने किस तरह मुझे कुछ समझ नहीं आया, मैंने हाँ कर दी और वो बहुत खुश थी, बहुत ज़्यादा। ज़ायशा रिश्ता हो गया, फिर शादी हो गई। 6 माह के बाद जब शादी हुई, सायशा बहुत खुश थी, बहुत खुश रहती। और भाभी वो तो बहुत खुश थी, जैसे उनकी दिली मुराद पूरी हो गई। इस तरह वक्त तेज़ी से गुजरता चला गया और फिर हमारे घर में खुशी आई। अल्लाह ताला ने प्यारा सा चांद सा बेटा दिया। लेकिन मैं ज़ायशा को अपनी ज़िंदगी में शामिल तो कर चुका था, मगर मैं उससे मोहब्बत नहीं करता था। दिल बिल्कुल ख़त्म हो चुका था और हमेशा ये सोचता कि मिनाल ने मेरे साथ क्या किया, अफसोस करता। और और फिर अपने बेटे से इतनी मोहब्बत करने लगा। वक्त इतनी तेज़ी से गुजरता चला गया। हर वक्त ज़ायशा मुझसे कहती, आप मुझसे मोहब्बत नहीं करते, आप मुझे पसंद नहीं करते, लेकिन आपने मेरा दिल रखा, शादी कर ली, मैंने तुमसे शादी कर ली, ये बहुत बड़ी बात है, तुम्हें अपनी ज़िंदगी में शामिल किया। और उसका हमेशा यही शिकवा रहता। वक्त इतनी तेज़ी से गुजरता चला गया कि पता ही ना चला। मैं अपने बेटे से मोहब्बत करता, ज़ायशा से बहुत दूर रहता था। 3 साल का अरसा बीत गया और फिर वक्त तेज़ी से गुजरता जा रहा था। मुझे अपने बच्चे से बहुत मोहब्बत थी, मैं बिल्कुल भी तवज्जो ना देता। दिल तो जैसे मर चुका था, बिल्कुल भी नहीं। ज़ायशा मुझे बहुत मोहब्बत करती, कोशिश करती कि मैं उससे टाइम दूं, लेकिन मैंने सबकी बात रखी, ज़ायशा का दिल रखा, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं भूला था मिनाल को।
پھر مجھے یاد آتا نہ جانے کس کے ساتھ آئی تھی، وہ کون تھا، کیا تھا، اور جانتا تو تھا میں کہ وہ مرینا کا بھائی تھا، لیکن میں ذائشہ کی بات پر اعتبار کر گیا۔ اس دن ہمیں شادی میں جانا تھا، سب تیار ہو رہے تھے کہ اچانک سے مجھے ذائشہ اور بھابھی کی زور زور سے ہنسنے کی آواز آئی اور وہ مینال کا نام لے رہی تھی۔ جیسے ہی جا کے میں رک کے سننے لگا سائڈ پر ہو کے، تو مجھے آواز آئی، آپ ہی کیسے آپ نے میرا ساتھ دیا اور کتنے اختلافات کروائے نا میں نے، کیسی بربادی کی، زارن کی، کتنی محبت تھی، اور وہ بے وقوف سمجھ ہی نہ پائی مجھے کس طرح اختلافات کراتے چلے گئے۔ اور میری بھی تو خواہش تھی کہ میری بہن اس گھر میں آئے جو اتنا زیادہ لائک کرتی ہے، اور میری ذائشہ، اور آج دیکھو ذائشہ تم اس گھر کی بہو بن گئی، اور دیکھو تم نے حاصل کیا، واقعی میں میری دعائیں تھیں، اور آج دیکھو مینال اس گھر میں نہیں ہے اور تم کس طرح خوش ہو۔ یہ سب سنتے ہی مجھے اتنا غصہ آیا، اور جب مجھے آوازیں اور کس طرح اس پر الزام لگا، بے گناہی ثابت کر رہی تھی، کیسے میں نے اسے اس گھر سے نکالا چٹکی بجا کے، اور جب میں وہاں پہ گیا دوڑتا ہوا، اور جب میں نے غصے میں چیخنا شروع کیا اور ذائشہ کو کہا میں 1 منٹ تو میں اپنی زندگی میں برداشت نہیں کروں گا، تب ہاتھ پیر جوڑ رہی تھی، رو رہی تھی، مجھے معاف کر دیں، میں اپنی محبت میں اندھی ہو گئی تھی۔ یہ کیسی اندھی محبت ہے؟ محبت تو دان ہے، کچھ دینے کا نام ہے، تم نے تو برباد کر ڈالا، میں معافی مانگوں گا۔ اب سمجھ میں آیا کہ کیوں مرینا مجھے میسیجز اور کال کرتی تھی۔ میں ابھی اس سے ملتا ہوں، میں اس سے ریکویسٹ کروں گا کہ میری کال پر بات کرواؤ، میں معافی مانگوں گا مینال سے، اور تمہاری اب میری زندگی میں کوئی جگہ نہیں ہے، معاف کر دو، اسے معاف کر دو۔ بھابھی معافی مانگ رہی تھی، بھیا کو پتہ چل گیا، تم اس گھر میں رہو گی مگر میں اپنے بیٹے سے محبت کرتا ہوں، میں دوبارہ اب یہ گناہ نہیں کروں گا، ٹھیک ہے تم اس گھر میں رہو، لیکن اب میں تمہیں کوئی جگہ اس دل میں نہیں، اس گھر میں تم رہو خالی۔ وہ روتی رہی، چلاتی رہی، اور میں نے فیصلہ کر لیا، اور اس طرح پھر میں نے کانٹیکٹ کیا، جب مرینا سے ملا، اس کے گھر گیا، اسے بولا آنٹی کے گھر آ جاؤ، یعنی اپنی ممی کے گھر۔ وہاں پر جب اس نے ساری صورتحال بتائی، مجھے بہت افسوس ہو رہا تھا، میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، اور میں نے ریکویسٹ کی ایک بار میری بات کرا دو۔ کیسے کرا دوں؟ 3 سال گزر گئے، UK جا چکی ہے، اس کی خالہ جو اسے اپنی بہو بنانا چاہتی تھی، اس کی شادی ہو گئی۔ واٹ؟ تم نے مجھے یہ نہیں بتایا؟ کیوں بتاتی جب تم میرا فون ریسیو نہیں کرتے تھے؟ میں کیا کہنا چاہتی تھی، میسیجز ریسیو نہیں کرتے تھے، اس کی شادی ہو گئی، ہیپی لائف گزار رہی ہے، UK میں ہے، ایک بیٹی ہے۔ اور ریکویسٹ جب میں نے کی، میں رو رہا تھا، تو اس نے پھر کسی طرح میسیج کیا، اور پھر اس نے ریکویسٹ کی، صرف معافی کے لیے وہ بات کرنا چاہ رہا ہے، بات کر لو، جوائنٹ کال کروائی، میں بھی بات کر رہی تھی، اور پھر جب میں نے کہا پلیز مینال مجھے معاف کر دو، میں برباد ہو گیا، میری زندگی تباہ ہو گئی، مجھ سے غلطی ہو گئی، میرا خدا معاف کرے گا، لیکن میاں بیوی کا رشتہ بہت پاکیزہ ہوتا ہے، دوسروں کی باتوں میں کبھی نہیں آنا چاہیے، خود کو مضبوط رکھنا چاہیے، ایک دوسرے کی غلطی کو سمجھنا چاہیے، اور اگر وہ غلطی نہ کرے تو اسے پھر غلط نہ کہیں۔ اس غلطی کو آپ نے غلطی بنا ڈالا، صرف یہ غلطی تھی نا کہ میں ذائشہ کے کہنے پہ سامان لینے چلی گئی تھی، آپ اسے یقین کرتے، بھروسہ کیا تھا میں نے آپ پر، میں زاروں قطار رو رہا تھا، وہ بھی رو رہی تھی۔ تھینک یو سو مچ کہ تم نے مجھے اس قابل سمجھا معافی کے لیے۔ اور پھر اس نے کہا آئندہ مجھ سے کبھی بات نہیں کرنا، میں اپنی لائف میں بہت خوش ہوں۔ روتے ہوئے جب اس نے فون کاٹ دیا، میں بھی رو رہا تھا، اور مرینا مجھے بہت سمجھا رہی تھی، تم نے غلطی کی، اتنی محبت کرتے تھے، کچھ باتوں کو سمجھنا تھا، تم اس چیزوں کی انویسٹیگیشن کرتی، مجھ سے غلطی ہو گئی مرینا، مجھے تم معاف کر دو۔ ذائشہ نے ایسا جال بچھایا تھا کہ میں اس کی باتوں میں آ گیا، اور بالآخر میں یہ کہہ کے مرینا سے معافی مانگ کے آ گیا، اور آج اتنے سال گزر گئے، اپنے بیٹے سے پیار کرتا ہوں، بیٹے سے محبت کرتا ہوں۔ ذائشہ اب اس گھر میں رہتی ہے، مگر اس کو میں نے وہ درجہ نہیں دیا اب اپنے بیٹے سے، وہ سمجھ چکی ہے، زندگی میں بہت نادم اور شرمندہ ہے، اور میں اپنی زندگی میں بہت خوش ہوں، UK میں رہتی ہوں، وہاں کی مجھے برف بہت پسند ہے، وہاں کا منظر اچھا لگتا ہے، میری بیٹی، میرے ہسبینڈ مجھے بہت محبت کرتے ہیں، میرا گھر اور میرے خالہ خالو، آج زندگی خوشیوں سے بھر گئی، کاش کہ میری بات کو سمجھ لیتے، ایک دوسرے کو سمجھنا چاہیے، جب کوئی غلطی کو سمجھا رہا ہو کہ میں نے غلطی نہیں کی تو اسے سمجھنا چاہیے، جس طرح مینال کے ساتھ ہوا، اور زروان اس کی بات کو نہ سمجھ سکا۔ امید کرتی ہوں آج کی کہانی آپ سب کو پسند آئی، تو پلیز اسے لائک کیجیے گا، اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجیے گا کہ کبھی بھی باتوں پر نہ آئیں، اختلافات، کیسے اختلافات کروائے کہ آج اسے بھی کیا ملا، نہ ذائشہ کو کچھ ملا، ایک اولاد ہے مگر آج اسے وہ محبت نہ ملی، اس گھر میں رہتی ہے، کوئی عزت نہیں ہے، کیونکہ اس نے کسی کا گھر برباد کیا تھا، اور آج مینال خوش ہے۔ ملتے ہیں پھر اگلی شارٹ اسٹوری کے ساتھ، آپ سب کے ساتھ، اللہ حافظ۔